वेलकम ऑल बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेलिएंट पोल मशीन को एज जनरेटर, एज मोटर इन्वेस्टिगेट किया था और फेजर डायग्राम्स बनाए थे, प्रॉपर एंगल इक्वेशंस बनाए थे। वो सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी और मैंने कहा था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल मैं अब तुमको दूंगा, हम लोग सॉल्व करेंगे उसको मिल करके। वो न्यूमेरिकल जैसे मैं सिलिंड्रिकल रोटर में बनाया था ना एक न्यूमेरिकल, उसी टाइप का न्यूमेरिकल होगा। जो एक न्यूमेरिकल लाखों न्यूमेरिकल के बराबर होगा। अगर तुम इसको समझ गए तो फिर सेलिएंट पोल मशीन का हर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। ज़ाहिर है डिग्री डिफिकल्टी हमने कम रखा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस को ज़ीरो रखा है। आर्मेचर रेजिस्टेंस नॉर्मली ज़ीरो ही का आता है। अगर आरे आ भी जाता है तो तुम आसानी से उसको हैंडल कर लोगे, आई एम श्योर। तो ये प्रॉब्लम हम लोग सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के अंदर क्या क्या हो रहा है उसको भी झांकेंगे, समझे? तो इसको तुम सिर्फ ये मत समझो कि एक न्यूमेरिकल का हमने सोल्यूशन कर दिया, बल्कि ये न्यूमेरिकल तुमको इन डेप्थ सेलिएंट पोल मशीन की पूरी गहराई को बताएगा। देखो ये न्यूमेरिकल क्या है, पावर पॉइंट पे तुम्हें दे देता हूँ। देखो, a salient pole rotor generator is connected to an infinite bus at rated voltage. Obvious. It has direct axis reactance of 1.25 per unit and quadrature axis reactance of 0.75 per unit. Armature resistance may be neglected. अब पार्ट ए है, calculate excitation EMF and power angle when the generator delivers rated current at 0.85 pf lag. सारे पार्ट्स में तुमको दिखा देता हूँ, लेकिन सॉल्व करेंगे हम लोग वन बाई वन। पार्ट बी है, neglecting saliency, calculate excitation EMF and power angle for the same operating conditions as in part A. समझ गए? Part C है, with the excitation as in part A remaining constant, the generator is made to operate with a power angle of 30 degrees. Calculate the new power output, armature current and power factor. Part D, with the excitation as in part A remaining constant, determine the maximum power output for a stable operation. Also calculate the corresponding armature current and power factor. Part E, with the prime mover output as in part A remaining constant, the generator is made to operate with a power angle of 30 degrees. Calculate the new armature current and power factor. Part F, with the prime mover output as in part A remaining constant, determine the minimum excitation EMF for a stable operation. Also calculate the new armature current and power factor. Part G, with a power angle of 20 degrees, determine the two possible values of excitation EMF if the armature current equals 60% of full load value. Also calculate the corresponding power factors and power outputs. Part H, with a power angle of 15 degrees, determine the minimum armature current for a stable operation. Also calculate the corresponding power factor and power output. Part I, determine the maximum power output of the generator for a stable operation when the excitation lost, while it is still connected to the infinite bus. Also calculate the corresponding armature current and power factor. Part J, with a power angle of 15 degrees, determine the armature current, power factor and power output if the excitation is lost but the generator is still connected to the infinite bus. इतने पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। जाहिर है सब पार्ट तो एक साथ बनेगा नहीं। मैं ओपन बोर्ड पर जा रहा हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी को इनिशियली हम टेकअप करने वाले हैं, ठीक है? देखो इसी प्रॉब्लम को मैंने ओपन बोर्ड पे खोल दिया है। ये तुम पढ़ ही चुके हो। A salient pole rotor generator is connected to an infinite bus at rated voltage. It has direct axis reactance of 1.25 per unit and quadrature axis reactance of 0.75 per unit. Armature resistance may be neglected. Calculate excitation EMF and power angle with the generator when the generator delivers rated current at 0.85
5 pf lag. Neglecting saliency, calculate excitation EMF and power angle for the same operating conditions as in part A. तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर ग्रिड बना लेते हैं और स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। ये मान लो कि ये EF के लिए मैंने बनाया है। क्योंकि इसमें आरे नहीं है, इसलिए सेलिएंट पोल जनरेटर का जो स्कीमेटिक डायग्राम बनेगा सिंगल लाइन, वो सिर्फ इतना बनेगा। सीधे रहो भाई। ये इनफाइनाइट बस का सिंबल है। ये है V, बस वोल्टेज। ये V है, ये है EF, ये है EF, ये है IA, रेजिस्टेंस कुछ नहीं। दिस इज IA, IA है ये। दूर हो गया, नजदीक कर देते हैं। चलो ये IA हो गया। ठीक है, इसमें सेलिएंट पोल मशीन में हम लोग XD XU बाहर लिख देते हैं, इसलिए कि इक्विवेलेंट सर्किट में उसकी कोई जगह नहीं है। हर किताब में तुम देखोगे कि XD कॉमा XQ सिर्फ लिखा है। वैल्यूज तुम्हारे दिए हुए हैं XD XQ। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन डेटा वगैरह मैं लिखूंगा नहीं, गिवन डेटा तुम न्यूमेरिकल में देख ही रहे हो। सबसे पहला काम लोकेटिंग द क्वाड्रेचर एक्सिस, पहला काम यही होगा, लोकेटिंग द क्वाड्रेचर एक्सिस। तो देखो क्वाड्रेचर एक्सिस लोकेट करने के लिए फेजर डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। फेजर डायग्राम इसी पर बना देते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने तुमको कहा था कि डायरेक्ट एक्सिस को हम लोग हमेशा रखेंगे
वर्टिकल। ये होगा हमारा डायरेक्ट एक्सिस, डी एक्सिस। क्वाड्रेचर एक्सिस यहाँ होगा, मान लो कि क्वाड्रेचर एक्सिस यहाँ है, यह है क्वाड्रेचर एक्सिस, क्यू एक्सिस। यह है डी एक्सिस, डी एक्सिस। और यह है क्वाड्रेचर एक्सिस, क्यू एक्सिस। दिस इज द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ EF। EF का परमानेंट रेजिडेंस क्वाड्रेचर एक्सिस होता है, ये मैं बता चुका हूँ, पिछले वीडियोस को चेक कर लेना। अब देखो, V एंगल 0 डिग्री, हम रेफरेंस लेते हैं V। स्ट्रेट लाइन चाहिए भाई, ओरिजिन से खींचना है इसको। ओरिजिन से नीचे आ रहा है, नज़र भी अब नहीं आता है। चलो चलेगा, चलेगा। V हमको यहाँ खींचना है, ये मान लो कि हमने खींच दिया V। ये हमारा रेफरेंस फेजर है, एंगल 0 डिग्री, समझे। और IA इससे 0.85 PF लैग पे है, मतलब तकरीबन 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में IA है। ये मान लो कि IA है, IA। ये IA है, और ये एंगल है फाई। ये एंगल फाई है, और ये एंगल डेल्टा है। पावर एंगल, इंटरनल PF एंगल ये होता है, इसको हम कहते हैं साई। ये टोटल एंगल है, ये एंगल है साई। ये एंगल, ये है साई। यहाँ पर अगर गंदा हो गया हो तो इसको मिटा करके दूसरी जगह बना देते हैं। ये है साई, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब इसको रिजॉल्व करेंगे IQ और ID में।
ये हो गया आई क्यू, क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट इसका। करंट का क्वाड्रेचर एक्सिस के डायरेक्शन में रिजोल्यूशन है आई क्यू। ये डायरेक्ट एक्सिस में आई डी, आई डी। चलो हो गया, ये है आई डी। आई डी डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट ऑफ द आर्मेचर करंट, ये है आई डी। समझ आ गया? इसको थोड़ा सा डॉटेड कर देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए कि ये प्रोजेक्शन के लिए बनाया है, ये कोई फेजर नहीं है। चलो चलेगा। ठीक है, अब देखो हमको करना है v प्लस जे आई ए एक्स क्यू, क्वाड्रेचर एक्सिस को लोकेट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा कि इसको बढ़ाता हूँ। इसको बढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि मैं इसको कॉपी कर लूँ। इसे कॉपी कर लिया और इसी को इसके सामने बढ़ा दिया। बढ़ गया। अब इसको डॉटेड कर देता हूँ क्योंकि एक्सटेंशन है ना, इसको डॉटेड कर देता हूँ। ये आई ए का डायरेक्शन है। इसमें v प्लस जे आई ए एक्सेस करना है, मतलब हमको 90 डिग्री से आगे बढ़ना है। अब देखो अंदाज से मैं 90 डिग्री कर रहा हूँ, इतना नापूंगा नहीं इसलिए कि टाइम ज़्यादा लगेगा। ये समझो कि 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसे कॉपी करके इसी को आगे बढ़ा देता हूँ। कॉपी करके इसी को आगे बढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा एक्सटेंड हो तो एक्सटेंड कर देता हूँ इसको ताकि कोई एक्सिस तक पहुँच जाए। थोड़ा पतला हो जाएगा लेकिन काम चल जाएगा। मोटा हो जाएगा, पता नहीं, एक्सटेंड करने पर मोटा हो जाएगा। चलो हो गया। ये है जे आई ए एक्सेस। बाकी जो एक्स्ट्रा हो गया उसको मिटा देता हूँ। जे आई ए एक्सेस हो गया ये। ये है जे आई ए एक्सेस। जे आई ए फेजर डायग्राम बनाना भी प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे सामने बना रहे हैं। जे आई ए एक्स क्यू, एक्स एस नहीं एक्स क्यू, क्वाड्रेचर एक्सिस लोकेटर है। इससे मिला ये लोकेटर ई डैश, ये है ई डैश। ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है। एक्स्ट्रा अगर चाहो तो मैं मिटा देता हूँ लाइन को।
ठीक है। v प्लस जे आई एक्स यू आपको ई डैश तक पहुंचा देगा। उसे कैलकुलेट कीजिए पहले। सबसे पहले कैलकुलेट ये कीजिए, वैल्यू तुम जानते हो, लिख लोगे। देखो, ई डैश एज फेजर, सब फेजर, इज इक्वल टू v प्लस जे आई ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यू। आर ए है नहीं, सो नो प्रॉब्लम। आई अगर आर ए होता तो क्या करता, v प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स क्यू होता। अब देखो, इसको रेफरेंस हम लेते हैं। रेटेड वोल्टेज का मतलब 1 पर यूनिट, 1 एंगल 0 डिग्री, प्लस जे आई ए is also rated, so 1 per unit, but its angle is minus cos inverse 0.85। याद करो, 0.85 pf लैग का करंट है। तो प्लस जे, ये करंट हो गया 1 एंगल, माइनस कॉस इनवर्स 0.85 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यू। एक्स क्यू का वैल्यू क्या दिया था, चेक करो, गलत नहीं लिख दो, 0.75, 0.75, 0.75। कैलकुलेटर निकालो और इसको सॉल्व करो। ई डैश कितना आया, इसको सॉल्व करो। मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों आएगा, इसको नोट करके रखोगे। ई डैश इज इक्वल टू, देखो, 1 प्लस 1 एंगल माइनस कॉस इनवर्स 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 आई। और से देखो, देख लिया, 0.75 आई इक्वल टू करो। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आया है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। शिफ्ट टू पोलर 3, आर एंगल थीटा का फॉर्म, ये आ गया 1.338, तो 1.534 कर दूं। ई डैश इज इक्वल टू, देख लो, 1.534, 1.534, 38 था, उसको मैंने 4 कर दिया। एंगल, एंगल है 24.56 डिग्री, देख लो, एंगल इज 24.56 डिग्री। ये है पर यूनिट। एक काम की चीज निकल आई, क्वाड्रेचर एक्सिस लोकेट हो गया ना। V और E डैश के बीच में ये डेल्टा आया 24.56 डिग्री। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, 24.56 डिग्री आया। दैट इज द मैग्नीट्यूड इज, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E डैश, लिख देता हूँ, इज इक्वल टू
1.534 per unit, and the power angle delta straight is available from here is 24.56 degree. 24.558 था बच्चों, 24.56 कर दिया। अब देखो हमको क्या करना है, हमको v प्लस जे आई डी एक्स डी प्लस जे आई क्यू एक्स क्यू करेंगे तब जब हम लोग पहुंचेंगे ई एफ तक। समझ गए? हम लोगों को v प्लस जे आई डी एक्स डी करना है। v में जोड़ना है जे आई डी एक्स डी, इतना। ये है जे आई डी एक्स डी, जे आई डी एक्स डी। और फिर फर्दर क्या जोड़ना है एज फेजर, जे आई क्यू एक्स क्यू। देखो यहाँ ये दिस इज जे आई क्यू एक्स क्यू, जे आई क्यू एक्स क्यू। अब थोड़ा तुम थ्योरी को रेफर कर लेना। इसमें ई डैश के आगे जो ई एफ आ रहा है, ये ई एफ है। इसको रेड से कर देता हूँ। ये है ई एफ, ई एफ। ये वाला। ये डिस्टेंस क्या होती है तुम जानते हो? याद है? आई डी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू होती है। ई डैश में तुम आई डी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू जोड़ दोगे तो ई एफ मिल जाएगा। यह मैं तुमको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, अब यहाँ बनाने की जरूरत नहीं। तो हमको निकालना है आई डी, तो अब आई डी मैं निकाल रहा हूँ। चलो रेडी से लिखते हैं। नाउ आई डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई ए इंटू साइन साई। अब गौर से देखो, साई यहां पर है 5 प्लस डेल्टा, राइट? सो व्हाट इज आई डी? मैं बीच बीच के कैलकुलेशन लिखूंगा नहीं बेटा, सीधे कैलकुलेटर पर डालूंगा, जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे सामने होगा। आई ए इज 1 पर यूनिट इंटू साइन, साई इज 5 प्लस डेल्टा, मतलब इज इक्वल टू 1 साइन 5 is cos inverse 0.85 plus delta is 24.56 degrees।
वैल्यू कैलकुलेट कर लो आईडी का। सो आईडी इज इक्वल टू डी है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1.1। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ साइन cos इनवर्स शिफ्ट cos इनवर्स 0.85 प्लस 24.56। देखो इज इक्वल टू 0.8324, 0.8324 ये आया, इज इक्वल टू 0.8324 पर यूनिट। पॉइंट है 8324 पर यूनिट। ये है आईडी। आईडी इंटू एक्सडी माइनस एक्सक्यू अगर तुम जोड़ दो ई डैश के मैग्नीट्यूड में तो ये मिल जाएगा। नाउ EF the magnitude is equal to E dash का मैग्नीट्यूड प्लस ID मल्टीप्लाइड बाय XD माइनस XQ। वैल्यू पुट कर दो इज इक्वल टू ई डैश का वैल्यू कितना आया था 1.534, 1.534 प्लस अभी आईडी का वैल्यू तुमने क्या लिखा 0.8324 मल्टीप्लाइड बाय XD। XD शायद था 1.25 और XQ था 0.75। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म कर लेता हूँ प्रीवियस में 1.25 0.75 ठीक है 1.25 0.75। इसको सॉल्व करो, इससे तुमको ई डैश का EF का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इज इक्वल टू 1.534 प्लस 0.8324 1.25 माइनस 0.75 कितना होगा 0.5 से 12 0.5 में हो गया ना इंटू 0.5 में कर रहा हूँ। देखो इज इक्वल टू 1.9502 इज इक्वल टू 1.9502 1.9502 इसको छोड़ दे यहीं पर काफ़ी है 1.95 के बाद 0 है और इसका वैल्यू तकरीबन 2 के करीब है तो छोड़ दिया जाए। EF इज इक्वल टू 1.95 पर यूनिट तुम्हारा फाइनली आ गया। अब मैं यहीं पर तुमको कैलकुलेशन चेक करवाता हूँ। आ गया ना
कैलकुलेशन चेक मैं तुमको करवाता हूँ, ये तुम रफ में क्या करोगे, फेयर फेयर में नहीं करोगे। कैलकुलेशन चेक। कैलकुलेशन चेक मैं ग्रीन में कर देता हूँ। कैलकुलेशन चेक। कैलकुलेशन चेक। ये क्या करना है, तुम जानते हो कि ऑल्सो ईएफ, ऑल्सो ऑल्सो ईएफ magnitude is equal to V cos delta, V cos delta plus I dxd। 1.95 इसको भी याद आना चाहिए। वैल्यू पुट करो, V का वैल्यू 1 पर यूनिट, cos डेल्टा क्या था, डेल्टा क्या था 24.56, 24.56। अगर गलती हो जाए लिखने में तो तुम लोग अपना ठीक कर लेना। 24.56, इसलिए कि पिछला पेज मुझे नज़र नहीं आता है जब तक देखो ना। प्लस आई डी, आई डी क्या था 0.8324 था, 0.8324, ये याद रखना पड़ेगा। 0.8324 मल्टीप्लाइड बाई एक्स डी, ये था 1.25, अगर मुझे सही याद है तो। अब इसको सॉल्व करो। cos 24.56 डिग्रीज, cos 24.56 डिग्रीज प्लस पॉइंट, ब्रैकेट कर देते हैं इसको, प्लस 0.8324 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। देखो, देख रहे हो, इज इक्वल टू आ गया 1.9500 इज इक्वल टू 1.95। इसलिए द कैलकुलेशन इज ओके। ओके, ठीक है, ये कैलकुलेशन चेक हो गया। अब कुछ और करते हैं। देखो, डेल्टा का वैल्यू निकल चुका। ये तुमसे पूछा क्या था, तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में तुमसे पूछा था एक्साइटेशन इन्फंट पावर एंगल। एक्साइटेशन यहाँ पे भी निकल गया, पावर एंगल भी निकल गया, निकल गया ना। यहाँ पे इसको हाईलाइट करके आंसर कर दो, ये आंसर है तुम्हारा। दिस इज आंसर। तो हमने चेक किया था, आंसर तो यही निकल गया था। इसको हाईलाइट कर दो ग्रीन से।
ये हो गया आंसर 1.95 पर यूनिट। और डेल्टा का तो यही आंसर आंसर निकल गया था। ये एक आंसर है। ये भी तो आंसर बेटा। डेल्टा आंसर हो गया ना, इसको भी घेर दो। ई डैश लोकेट होते ही डेल्टा का वैल्यू मिल गया था। ये आंसर हो गया। ये दोनों मिल गया। क्रॉस चेक भी मैंने कर लिया। अब कुछ और एक्सरसाइज में करता हूँ। ये कैलकुलेशन चेक हो गया। अब देखो, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये है कि तुम देखो, इसका जो पावर आउटपुट था, पावर आउटपुट पी, जनरेटर का पावर आउटपुट, तुमको कोई शक है कि ये जो पी था, यहीं से दिखाते हैं, इज इक्वल टू वी आई ए कॉस फाई था। वी रेटेड 1 पर यूनिट, आई ए रेटेड 1 पर यूनिट, कॉस फाई 0.85 पी एम। इसका मतलब है कि रियल पावर है 0.85 पर यूनिट। मतलब ये फुल लोड आउटपुट है, इसलिए कि रेटेड वोल्टेज पर रेटेड करंट आप दे रहे हैं, तो फुल लोड हो गया। ठीक है ना। ये है 0.85 पर यूनिट। अब ये ज़रा चेक करो कि जो हमारे पास इक्वेशन था, वी एफ बाई एक्स डी साइन डेल्टा प्लस वी स्क्वायर बाई टू इंटू 1 बाई एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स डी इंटू साइन टू डेल्टा से यही वैल्यू आता है कि नहीं, चेक करो। ऑल्सो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कर रहा हूँ, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। ऑल्सो P is equal to VEF by XD sin delta plus V square by 2 into 1 by x cube minus 1 by xd into sin 2 delta। वैल्यू पुट करो। V का वैल्यू 1, EF का वैल्यू 1.95 था ना, XD का वैल्यू 1.25, साइन डेल्टा कितना था बोलो, 24.56, यहीं पर मिल गया, साइन 24.56 डिग्री। यह है एक्साइटेशन पावर प्लस वी स्क्वायर बाई टू 1 स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एक्स क्यू, एक्स क्यू है 0.75 माइनस 1 बाई एक्स डी है 1.25।
25, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 इंटू डेल्टा है 24.56 डिग्री। इसको ब्रैकेट में कर दो, इंटू साइन, यहाँ पर इंटू कर देते हैं, इंटू साइन 2 इंटू 24.56। अब इंडिविजुअली देखो तो ये कितना हुआ। मैं अलग अलग एक साथ कैलकुलेट जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। देखो ये हो गया 1.95, 1.95 ही था ना यार। ये एफ का वैल्यू क्या था, चेक कर लूँ गलत नहीं हो जाए। ये एफ का वैल्यू था 1.95, ठीक है। 1.95 इंटू साइन 24.56 डिवाइडेड बाय 1.25, ये कैलकुलेशन। अब देखो यह आ गया 0.6484, जीरो है छोड़ दो उसको। इसका मतलब है कि एक्साइटेशन पावर इसका है 0.6484 पर यूनिट। ये एक्साइटेशन पावर। अब रिलक्टेंस पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्लस 1/2 तो 0.5 हो गया, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 इनवर्स। 1/0.75 के बजाय तुम लोग 0.75 इनवर्स कर सकते हो, माइनस 1.25 इनवर्स। ये सब फंक्शन का यूज किया करो, इनवर्स हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाय साइन, ब्रैकेट आ गया है, तो 2 इंटू 24.56, 24.56 देख लो, इज इक्वल टू, ये रिलक्टेंस पावर आने वाला है 0.2016 प्लस 0.2016। इसका ग्रेन टोटल क्या हो गया, और से देखो 0.6484, 0.6484 प्लस इतना 0.85 आ गया ना, इज इक्वल टू 0.85। तो पावर भी ओके हो गया, एक कैलकुलेशन भी चेक हो गया। जो वी आई कॉस फाई का रिजल्ट था वही वी एफ वाई एक्स डी साइन डेल्टा प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/x माइनस 1 एक्स डी साइन 2 डेल्टा से आ गया ना बेटा, हो गया। अब मुझे डिस्कस ये करना है कि इस फुल लोड पे रिलक्टेंस पावर खास तौर से इसका क्या शेयर था, शेयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एक्साइटेशन पावर और रिलक्टेंस पावर का शेयर कितना था ऑन फुल लोड। पेज ऐड कर देते हैं थोड़ा, और जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना ऑन फुल लोड, ऑन फुल लोड एक्साइटेशन पावर का परसेंटेज ऑन फुल लोड, एक्साइटेशन पावर
इज इक्वल टू क्या वैल्यू था 0.6484 0.6484 divided by total power is 0.85 into 100%. कितना परसेंट आ गया 0.6484 divided by 0.85 is equal to 76.28% is equal to 76.28%, मतलब तकरीबन 23-24% रिडक्टेंस पावर हो गया। वो भी निकाल देता हूँ। ये फुल लोड पर हिसाब किताब है। रिडक्टेंस पावर इज इक्वल टू कितना था एग्जैक्ट वैल्यू 0.2016 0.2016 0.2016 divided by 0.85 total power multiplied by 100%. कितना परसेंटेज हो गया जो बचा हुआ हो गया हो ठीक है ना 23.72% आना चाहिए तकरीबन 0.2016 divided by 0.85 23.72% आ गया और से देखो 23.72% है ये भी परसेंट है ये भी परसेंट तो टोटल हो गया ना 100%। टोटल इज इक्वल टू 8 2 10 एक तो 3 7 10 एक 6 7 3 10 हो गया 100%। कहने का मतलब यह है बच्चों कि फुल लोड पर रिलक्टेंस पावर का भी कंट्रीब्यूशन 23.72%। इट्स नॉट पीनट्स काफी कंट्रीब्यूशन है रिलक्टेंस पावर का ठीक है इस चीज को भी ध्यान रखोगे रिलक्टेंस पावर का कंट्रीब्यूशन काफी है। अब देखो अब नेक्स्ट पार्ट में ये तो हो गया सारा और इसमें कुछ करने का नहीं था। नेक्स्ट पार्ट में ये तो अगला पार्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं हम लोग करेंगे कैलकुलेट द एक्साइटेशन ईएमएफ ये तो हो गया नेग्लेक्टिंग सेलियंसी कैलकुलेट एक्साइटेशन ईएमएफ एंड पावर एंगल फॉर द सेम ऑपरेटिंग कंडीशंस एज इन पार्ट ए। पार्ट ए में 0.85 पीएफ लैग पे रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट पे सब डिलीवर हो रहा है तो निगलेक्टिंग सेलियंसी देखना है कि क्या होगा पार्ट बी में। तो अभी जो हम लोगों ने सोल्यूशन किया था वो पार्ट ए का किया था तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पार्ट ए पार्ट ए है ए का सोल्यूशन है। अब बी का सोल्यूशन करेंगे। पार्ट बी
neglecting saliency. Here xs is equal to xd is equal to 1.25 per unit. सैलियंसी आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो ये ई डैश और ई एफ कोई चक्कर नहीं, सीधा ई एफ निकल जाएगा किसका, सिलिंड्रिकल रोटर का ई एफ। अब गौर से देखो, इज इक्वल टू वी प्लस जे आई ए इंटू एक्स डी, एक्स की जगह एक्स डी, नेग्लेक्टिंग सेलियंसी यहाँ पर लिख देता हूँ। नेग्लेक्टिंग सेलियंसी, वैल्यू पुट करो, 1 एंगल 0 डिग्री प्लस जे 1 एंगल माइनस कॉस इनवर्स 0.85 multiplied by XD is 1.25. कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करो, 1 प्लस 1 एंगल माइनस cos inverse 0.85 multiplied by 1.25i, 1.25i, देख लो, इज इक्वल टू क्या, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आया, शिफ्ट पोलर में शिफ्ट कर रहा हूं, इज इक्वल टू आ गया 1.9636, तो 1.964 कर लो, is equal to 1.9636 को मैंने 4 कर दिया, एंगल, और से देखो, एंगल इज 32.65 डिग्रीज, ध्यान देना, एंगल इज 32.65 degrees. $6.5 per unit. अब तो मुझे ये बताओ कि एक सिलिंड्रिकल रोटर का एक्साइटेशन वोल्टेज 1.964 आया और सेलिएंट पोल मशीन का कितना था, 1.95, समझे, 1.95 था, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल रोटर और सेलिएंट पोल रोटर के ईएफ में कोई खास डिफरेंस तो था नहीं। अगर तुम सिलिंड्रिकल रोटर्स के मुकाबले करना चाहो तो सेलिएंट पोल का कितना कम था, मान लो कि रेफरेंस लेते हो 1.964, मैं तुमको दिखाया था 1.964 इसका था, माइनस 1.95 सेलिएंट पोल का था, डिवाइडेड बाय, मैं सिलिंड्रिकल के रेफरेंस ले रहा हूँ, 1.964, ये पर यूनिट हो गया, इनटू 100%, ये कैलकुलेशन है।
कि कितना कम आएगा सेलिएंट पोल का ईएफ, वो यहाँ पे है 0.713%। मैं लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे। ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन किस चीज का? परसेंटेज डिफरेंस। परसेंट डिफरेंस इन ईएफ। ईएफ के मैग्नीट्यूड में परसेंट डिफरेंस क्या है? क्या है? 1.964 माइनस 1.95 डिवाइडेड बाय 1.964। रेफरेंस हमारा सिलिंड्रिकल है 1.964 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये कैलकुलेशन मैंने क्या भी किया था, ये 0.713%, 0.713% है। एक्चुअली 28 है, 0.713% का डिफरेंस, समझ गए? लेकिन डेल्टा, बट परसेंट डिफरेंस इन डेल्टा पावर एंगल, परसेंट डिफरेंस इन डेल्टा, ये सिलिंड्रिकल रोटर का डेल्टा कितना है? 32.65। सेलिएंट पोल का कितना था? शायद 24.56 था ना? माइनस 24.56 ही था ना? कितना था? हाँ 24.56 था। डिवाइडेड बाय सिलिंड्रिकल रोटर के रेफरेंस से कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 32.65, ये सब डिग्री है, ये सब डिग्री है, इंटू 100%। कैलकुलेट करो, डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाएगा, देखो कितना हुआ। ये हो गया 32.65, 32.65 माइनस 24.56, 24.56 divided by 32.65, 32.65 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखो ये एंगल का डिफरेंस आ रहा है परसेंट में, 24.78%, इतना डिफरेंस है, इज इक्वल टू 24.78%। इतना परसेंट कम
सेलिएंट पोल मशीन को पावर एंगल लगेगा। जाहिर है इसका मतलब यह है कि स्टेबिलिटी का मार्जिन काफ़ी बढ़ गया, ठीक है ना। तो यह है सब्सटेंशियल, दैट इज सब्सटेंशियल। सेम फुल लोड कंडीशंस में तुमने देखा कि सेलिएंट पोल मशीन सिर्फ 24.56 डिग्री लेगी, जबकि सिलिंड्रिकल मशीन 32.65 लेगी। अगर तुम सेलिएंट पोल से कंपेयर करते तो क्या करते, भाई डिवाइड बाय 24.56 करते, तब परसेंट निकालते। लेकिन इसमें ये नेग्लिजिबल है डिफरेंस। मैग्नीट्यूड का डिफरेंस नेग्लिजिबल है, ये मैंने तुमको शुरू में बताया था, वीडियो फिर से देखना कि मैग्नीट्यूड का डिफरेंस सेलिएंट पोल मशीन और सिलिंड्रिकल मशीन में फुल लोड पे ख़ास तौर से नेग्लिजिबल होता है। और यही वजह है, मार्क माई वर्ड्स, यही वजह है कि रेगुलेशन अगर निकालना हो, वोल्टेज रेगुलेशन अगर निकालना हो, तो हम लोग सेलिएंट पोल थ्योरी में जाते ही नहीं हैं। रेगुलेशन हम लोग निकाल देते हैं सिलिंड्रिकल रोटर थ्योरी से सीधा, इसलिए कोई खास डिफरेंस ही नहीं है, ऑलमोस्ट नील है। इतनी मेहनत कौन करेगा, इतनी मेहनत कौन करेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, therefore for regulation calculation, therefore for regulation cylindrical rotor theory is used. Cylindrical rotor theory यूनिवर्सल है, कोई रेगुलेशन नहीं निकालता है इतना झंझट करके, सीधा एक्सटी करके निकाल देते हैं, राइट। इसलिए कि जो डिसीजन, ये जो डिफरेंस है ये नेग्लिजिबल है, समझ गए। तो ठीक है बच्चों, ये इन्वेस्टिगेशन आज हम लोगों ने कर लिया और तुमको दिखा दिया कि वाकई ऐसा ही होता है। एक्साइटेशन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन पावर एंगल का डिफरेंस बहुत होता है। अगर तुम सेलिएंट पोल की नज़र से देखते कि सेम पावर को हैंडल करने के लिए सिलिंड्रिकल रोटर को कितना परसेंट ज़्यादा एंगल बढ़ाना पड़ेगा, तो वो मैं निकाल देता हूँ। वो ऐसे निकाल देता हूँ कि 32.65 था ना, ये तो निकल गया, रिप्ले फंक्शन से निकल गया, तो खत्म ही कर देता हूँ इसको। 32.65 एंगुलर डिफरेंस बता रहा हूँ, माइनस 24.56 डिवाइडेड बाय 24.56 करो, डिवाइडेड बाय 24.56 इंटू 100 कर दो। तो ये फिगर बताएगा कि सेम पावर हैंडल करने के लिए सिलिंड्रिकल रोटर को कितना परसेंट एंगल ज़्यादा करना पड़ेगा। गौर से देखो, ये आ गया 32.94%, 32.94%। मतलब सेलिएंट पोल मशीन को जितना एंगल चाहिए उससे 32.94% ज़्यादा चाहिए सिलिंड्रिकल रोटर को, जबकि मैग्नीट्यूड का डिफरेंस वैसे मैं देखता हूँ ये ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा,
ये 0.71 था ना, 1% हो जाएगा, इसके आसपास हो जाएगा। वो भी कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ बच्चे, हंस क्यों रह जाए तुम्हारे दिल में। 1.964 माइनस 1.95, अब डिवाइडेड बाई 1.95 कर देता हूँ, इंटू 100। देखो ये मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, ये 0.718% है, 1% भी नहीं, 0.718%, राइट, एज ए रेशियो ऑफ, ये परसेंटेज डिफरेंस जो हमने निकाला है, ये इन टर्म्स ऑफ सिलिंड्रिकल वैल्यूज निकाला है। ये जो डिफरेंस निकाला है, ये निकाला है इन टर्म्स ऑफ सिलिंड्रिकल वैल्यूज। इन टर्म्स ऑफ cylindrical values। इन टर्म्स ऑफ सेलिएंट पोल वैल्यूज निकालोगे तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आएगा, ये तो 32% हो जाएगा, ये 0.7179% सिर्फ हुआ है। आई होप कि तुम्हारा दिमाग अब काफ़ी खुल गया होगा। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसको रिकॉर्ड चेक कर लें कि रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, तो इस सिगरेट को हम साफ़ कर देते हैं। ये साफ़ हो गया, ये साफ़ हो गया, ये साफ़ हो गया, इसमें तो गिल्ट थी ही नहीं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो सब ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया है। अब हम लोग पार्ट सी और पार्ट डी को बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों, आज इजाज़त दो। हैव ए नाइस टाइम। हम उस पर चले जाते हैं कि रिकॉर्डिंग के स्टेटस क्या था, तो अभी चेक कर लिया था, वो हो रहा था। ठीक है ना, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अच्छा खासा टाइम हो गया होगा, 1 घंटा 13 मिनट वगैरह हो गया। तो ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से इसको समझना, फेजर डायग्राम वगैरह बिल्कुल देख करके कायदे से समझना। ठीक है, ठीक है, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने बंद कर रहा हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।